Very good morning to Standard 10. Today we are going to read our supplementary book, that is Footprint Without Feet. And in this book we were reading chapter 1. So in this video we will finish our chapter 1 story. Okay? We could hardly believe in when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on as permanent guest, but I knew Mrs. Pamphray was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The coffer opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pamphray almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. In lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round, and lawn and in their midst, ears flapping, tail wagging, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing off ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The coffer was still holding the car door opened, and when Tricky saw his turn out the page, students, mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pampray's lap. She gave a startled oath and then had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pamphret leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. So that is how the story was done. Today we have completed our story, chapter 1. Now we will try to understand the meaning of these particular paragraphs that we have read. Okay, listen it very carefully. और तब हम मुश्किल से विश्वास कर पाए कि जब उसकी संपूर्ण शरीर संरचना के लिए बॉडी ब्रांडी आने लगी, तो और तब हम मुश्किल से ये विश्वास कर पाए कि उसकी संपूर्ण शारीरिक संरचना के लिए ब्रांडी आने लगी। कुछ रातों तक उस अच्छी शराब के दौर चलते रहे। उसे सूंघा गया तथा आदर के साथ पिया गया। वे बड़े
दिन ही संतुष्टि के थे। वे दिन बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि भरे दिन थे। सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसका सुधरा हुआ रूप दोपहर में शराब के साथ और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी के साथ खत्म होता था। ट्रिकी को अस्थायी मेहमान बनाकर रखना लालच था, परंतु मैं जानता था कि श्रीमती पैम्फ्रे दुखी थी और एक पखवाड़े बाद मैं उनको बताने के लिए मजबूर हो गया कि वह छोटा कुत्ता ठीक हो चुका था और वहाँ से ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यानी कुछ दिनों बाद वे लोग ट्रिकी के नाम पर बहुत सारा पार्टी वगैरह करते रहे। मिसेस पैम्फ्रे जो भी खाने का सामान भेजा करती थी, डॉक्टर और उनके सहयोगी मिलकर उन खानों का स्वाद आनंद लेते थे। किसके नाम पे? ट्रिकी के नाम पे, ठीक है। लेकिन डॉक्टर इस बात को जानता था कि कुछ समय पश्चात मुझे मिसेस पैम्फ्रे को सच्चाई बतानी होगी और ये अपने कुत्ते को यहाँ से ले जाएंगी। कुछ ही मिनटों के लगभग 30 फीट की चमचमाती हुई काले धातु की बनी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। चालक ने दरवाज़ा खोला और मैं श्रीमती पैम्फ्रे की तरफ अनुमान लगा पाया। यानी डॉक्टर ने जैसे ही कार के ड्राइवर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक छवि निकल के आई कार से और डॉक्टर उस छवि को देख कर ये समझ गया कि वो और कोई नहीं मिसेस पैम्फ्रे है। उसके हाथ कस के उसके आगे बंधे हुए थे। उसे कांपते होठों से आवाज़ आई, श्रीमान हैरियट, कृपया मुझे सच बताइए, क्या वो सचमुच पहले से अच्छा है? यानी मिसेस पैम्फ्रे को अपने ट्रिकी कुत्ते से बहुत लगाव था और वो उसकी एक्चुअली में केयर करती थी, इसलिए वो डॉक्टर से पूछ रही थी कि आप मुझे सच सच बताइए कि क्या वो उसकी हालत में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं मकान से होता हुआ बगीचे में गया। कुत्तों का एक झुंड घास के मैदान में तीव्र गति से गोल गोल घूम रहा था तथा उनके मध्य में कान को फटकारता हुआ पूंछ हिलाता हुआ सुनहरी छवि वाला छोटा ट्रिकी था। यानी इस कुत्ते के बीच में सभी लोग खेल रहे थे क्योंकि ट्रिकी अब उस माहौल में बिल्कुल घुल मिल गया था। 2 सप्ताह में वह लचीले कठोर मांसपेशियों वाला प्राणी में बदल चुका था। यानी 2 सप्ताह में जो बहुत ही ज़्यादा थुलथुल और मोटा हो गया था, 2 सप्ताह में कम्प्लीटली उसके शरीर में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले थे। शरीर को इतना फैलता हुआ कि उसकी छाती जमीन पर से रगड़े खाने लगे। वह उसे समूह के साथ अच्छी प्रतियोगिता कर रहा था। यानी अब वो बहुत अच्छा हुस्त तंदुरुस्त दिखने में लग रहा था, फिट लग रहा था दिखने में। मैं उसे वापस गलियारे से होता हुआ घर के सामने ले गया। चालक अब भी खुले दरवाजे को पकड़े हुए था और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वह मेरी गोद से जोर से छलांग मारकर अपनी मालकिन के पास चला गया और उसे देख कर भूखने लगा और फिर उस पर अपना प्यार लुटाने लगा। जैसे ही कुत्ते का जो गेस्चर होता है, जब उसके मालिक आते हैं तो वो अपनी दुम वगैरह हिलाना शुरू कर देता है, बिल्कुल इसी प्रकार से ट्रिकी ने मिसेस पैम्फ्रे को देखकर करना शुरू कर दिया था। इस उत्तेजना के दौरान मैंने चालक की मदद की उसके बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट और प्यालों को लाने में। यानी इतने देर में डॉक्टर ने क्या किया, मिस्टर हैरियट ने क्या किया कि ट्रिकी के जितने भी रहने के सामान थे, उसके चादर, खिलौने, गद्दे, कोट, प्यालों सबको गाड़ी में रख दिया और फिर मिसेस पैम्फ्रे वहाँ से श्रीमान हैरियट का कांपते हुए होठों से धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। कहती है कि आपके सर्विस से, यानी आपके इलाज से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और यह अस्पताल की विजय है। कहते हैं कि इस अस्पताल को मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ट्रिकी इतनी जल्दी रिकवर कर जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा। सो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे ये कहानी होती है ख़त्म। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे कहानी का हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेंगे और कहानी को समराइज़ करके मैं बताऊँगा। कहानी को समराइज़ करके बताने से ये होगा कि उस पूरे वीडियो में, उस एक वीडियो में वो पूरी कहानी आपको संक्षिप्त तौर पर समझ में आ जाएगी। ओके, so that's all for students today. Be safe and keep learning.